Hello students, I welcome you to today's session of learning. I hope you guys are doing well at your home and constantly remembering the lectures as well as the numericals which has been taught to you. Okay, and also do take care of yourself, because in this particular situation what you need to do is to be more specifically, if I'll say, you have to be more disciplined while you are at home. Okay, that means your time has to be fixed for studying as well as for different activities that you will do throughout your day. Okay, so as you can see, today we'll start with your new topic, that is pulley system. Okay, this is one of the topic of your chapter, that is machine. Okay, and this is also one of the most important topic of this particular chapter, because most of the time in your ICSE boards you will get a question from out of this particular topic, means like a combination of pulley systems, and the combination of pulley as well as string systems. Okay, likewise you will get a lot of numerical on the basis of the pulley systems. Okay, so basically in this particular pulley system, you make sure that the combination of pulleys has been understood to you quite easily, otherwise it will be somewhat difficult for you to understand. Okay, so let us begin with today's session of learning, where we will start with your new topic, that is pulley. As of now we have learnt about different machines, how a machine can have different terms like mechanical energy, how a machine can have terms like velocity ratio and efficiency of a machines, as well as you have also learned about different types of machines like class 1 system, class 2, class 3 lever system. We have gone through it. Okay, so this is also and also inclined plane as well as gear system we have already done. Okay, so let us begin with pulley. What is pulley? If I'll say, as the definition says, pulley होता क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पुली क्या करता है, एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है. ठीक है, जैसे कि एंड व्हाट इज इट मीन, व्हाट इज पुली? इट इज अ मेटेलिक और वुडन डिस्क with a grooved rim. That means कि as you can see in the diagram, pulley looks like this. एक ये metal का या wooden disc हो सकता है. ठीक है, disc होगा round shape में. ठीक है, बीच में grooves वगैरह होंगे, means open space होंगे इसमें. ठीक है, this wheel is attached at the middle through axle. ये axle से attach होता है. This is your axle. This is the point at which this wheel can rotate. ये रोटेट कर सकता है, एक्सेल बीच में है और उससे अटैच्ड है, ये रोटेट कर सकता है. एंड इट इज़ अ फिक्स्ड पुल्ली, इसलिए यहाँ पे वॉल से अटैच्ड होता है. और इस पुल्ली के साथ में स्ट्रिंग भी हम अटैच करते हैं. इसके आउटर रिम पे ये हम स्ट्रिंग अटैच कर देते हैं. ठीक है, तो फिजिकली इट लुक्स लाइक दिस. एंड पुल्ली सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पुल्ली इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटवुड मशीन भी हम कहते हैं. ठीक है, और ये डिफरेंट स्ट्रिंग्स में यहाँ पे हम ब्लॉक सिस्टम्स वगैरह यूज कर लेंगे और ब्लॉक लगा सकते हैं. ठीक है, और अगर एक साइड अगर हम ब्लॉक लगाते हैं, दूसरी साइड ब्लॉक नहीं है, ठीक है, और इधर से आप एफर्ट लगा रहे हो, तो दिस वुड बिकम योर लोड. तो दिस इज योर लोड एंड दिस इज योर एफर्ट. ठीक है, तो एक साइड एफर्ट हो जाएगा और एक साइड लोड हो जाएगा. लोड को लिफ्ट करने के लिए हम एफर्ट लगाते हैं स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर जो तनाव होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स विद इन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज टेंशन. उसी को हम टेंशन कहते हैं. ठीक है, सो ये सब चीज हम थोड़ा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो इट इज अ मेटेलिक और वुडन डिस्क विद अ ग्रूव्ड रिम. द डिस्क रोटेट्स अबाउट द एक्सेल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. सो दिस डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सेल के पॉइंट पे रोटेट करता है, सेंटर पे. ठीक है, सो इट कैन रोटेट क्लॉकवाइज, या ये क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, एंड इन जनरली आप इस टाइप से डिनोट करेंगे. ठीक है, इसको पुली सिस्टम को. ठीक है, हर एक बार ये एक्सेल और ये डिस्क और ये रिम ये सब बनाने की जरूरत नहीं है. यू कैन इजीली ड्रॉ लाइक दिस. ओके, हियर यू कैन सी दिस. सपोज दिस ब्लॉक हैज मास m1 kg, अनदर ब्लॉक हैज मास m2 kg. ठीक है, और ये कितने फोर्स से नीचे जाना चाहेगा, लोड कितना होगा m2g, और ये डाउनवर्ड इसका कितना होगा m1g. ठीक है, अब इनमें से जिसका भी फोर्स ज़्यादा होगा उसी की डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा आपका पुली. ठीक है,
and a single combination of the two or more pulley fixed in a frame is called as block. देखो होता क्या है block. A single or a combination of two or more pulley fixed in a frame is called as block. Block का मतलब कि एक फ्रेम है, this is your frame, जो आपका ये फ्रेम है, इस फ्रेम में अगर दो से ज़्यादा अगर पुली सिस्टम हम अटैच कर दे लाइक दिस, ठीक है, इज कॉल्ड एज ब्लॉक. ये पूरा एक ब्लॉक सिस्टम हो गया. इसमें ब्लॉक सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 2 पुलीज, ठीक है, ये एक पुली नंबर 1 हो गया, दिस इज पुली नंबर 2. तो दिस इज द ब्लॉक सिस्टम. ओके, सो ब्लॉक सिस्टम में B से अटैच्ड होता है. इट मे हैव 2 और मोर पुलीज, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज, एंड स्ट्रिंग वूंड अराउंड द पुलीज इज कॉल्ड एज टैकल. ठीक है, और ये जो हम एक पुलिस सिस्टम के चारों अराउंड जो हम ये स्ट्रिंग लगाते हैं या इसमें स्ट्रिंग अगर हम अटैच कर देते हैं, ठीक है, इस पुलिस सिस्टम में, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम टैकल कहेंगे. दिस इज टैकल. ओके, ब्लॉक एंड टैकल. और ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का भी आपके पास बहुत ये न्यूमेरिकल आता है. मोस्टली बोर्ड्स वगैरह में, आपके आईसीएसई बोर्ड्स वगैरह में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का न्यूमेरिकल आ सकता है. तो ब्लॉक इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पुलिस फिक्स्ड एट विद इन अ फ्रेम इज कॉल्ड एज ब्लॉक. एंड व्हाट इज टैकल? टैकल इज अ स्ट्रिंग अटैच्ड ऑन इट इज कॉल्ड एज टैकल. उसी को हम टैकल कह देंगे. ठीक है, सो ये दीज आर द टर्म्स दैट यू नीड टू लर्न. ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए. नाउ लेट अस मूव ऑन. पुली कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी मूवेबल ऑब्वियसली. ठीक है, ये देखो, ये आपका फिक्स्ड पुली है. पुली सिस्टम में मास M1 लगा है, M2 लगा है. ठीक है, दिस इज इसका वेट M1 M2G नीचे जाएगा. दिस इज M1G, इसको नीचे लेके जाएगा. ठीक है, विच एवर इज ग्रेटर इट विल मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक चीज और, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो रहता है उसको हम डिनोट करते हैं T से. मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर तनाव होगा. ठीक है, तो वो वही तनाव उसको खींच के लेके जाएगा. तनाव कैसे हो सकता है भाई? देखो, सपोज करो दिस इज अ ब्लॉक सिस्टम. अब ये एक थ्रेड अटैच कर दो इधर से. ठीक है, थ्रेड अटैच कर दो इससे, और इससे इसको खींचो 10 न्यूटन फोर्स से. ठीक है, तो इसके अंदर जो एक तनाव होगा वो इसको खींचेगा, इस ब्लॉक को. ठीक है, वो कितने फोर्स से खींचेगा? 10 न्यूटन. सो इसके अंदर जो टेंशन है, टेंशन इन द ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू 10 न्यूटन के बराबर होता है. ठीक है, सो लाइकवाइज आप बहुत सारी चीज और भी डिफरेंट सिचुएशंस आप कर सकते हैं जिसमें आप यू कैन इजीली फाइंड आउट द टेंशन विद इन द स्ट्रिंग. देखो, एक और चीज़ देखो, सपोज करो ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसका मास 10 kg का है. तो कितने फोर्स से ये नीचे जाना चाहेगा? M इंटू जी, 10 इंटू 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने 10 लिया है, तो ये 100 न्यूटन से नीचे जाना चाहेगा. बट इसके अंदर स्ट्रिंग इसको नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन कितना है? 100 न्यूटन के बराबर ही हो जाता है. ठीक है, तो जो भी इसके अंदर तनाव होगा इस स्ट्रिंग के अंदर, उसी को हम कहेंगे 10 न्यूटन फोर्स. ठीक है, इस पे जो स्ट्रिंग में तनाव होगा, ठीक है, वही क्या होगा? विच इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. ओके, और एक चीज और याद रखना है आपने, आप जब भी स्ट्रिंग सिस्टम लेंगे उसका मास आप नेग्लिजिबल लेंगे. इस स्ट्रिंग का मास नहीं लेना है, या इस पुली में ये जो स्ट्रिंग है इससे अटैच्ड है ये वाला, इसका आप मास नहीं लोगे, मास नेग्लिजिबल लेना है आपको. ठीक है, यू हैव टू, हम अजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे 1 by 1. तो अभी आपको पता थोड़ा सा क्यों हम मास क्यों नहीं लेते हैं. इसलिए क्योंकि अगर मास ले लोगे किसी भी स्ट्रिंग का तो उसका भी वेट तो एडअप हो जाएगा. देखो, सपोज करो ये ब्लॉक और ये एक स्ट्रिंग सिस्टम है. ठीक है, ब्लॉक एंड स्ट्रिंग सिस्टम. अगर इसका मास ले लेते हैं हम 10 kg स्ट्रिंग का, और इस ब्लॉक का मास है 20 kg, तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो तनाव है, ठीक है, जिसकी जो लगेगा वो पूरा इस वेट की वजह से भी लगेगा प्लस ब्लॉक की वजह से भी लगेगा. तो टोटल टेंशन एट द बेस ऑफ दिस वॉल वुड बी 10 plus 20, दैट इज 30 इंटू M इंटू जी, 10, दैट इज 300 न्यूटन. तो इस ब्लॉक पे यहाँ पे टेंशन 300 न्यूटन से इसको खींचना पड़ेगा. एडहेसिव फोर्स से ऊपर खींचेगा, 10 एडहेसिव फोर्स बिटवीन रोप एंड वॉल. ठीक है, वो 300 न्यूटन का होना चाहिए. सो अगर आप स्ट्रिंग का वेट ले लेते हैं तो क्या होगा? प्रॉब्लम आ जाएगी कि उसका वेट, अगर स्ट्रिंग का मास ले लेते हैं तो उसका वेट को भी ऐड करना पड़ेगा आपको. ठीक है, और मूवेबल सिस्टम में अगर 2 टाइप के पुलीज होते हैं, फिक्स्ड एंड मूवेबल. तो फिक्स्ड पुली सिस्टम में अगर इसका पुली का कितना भी वेट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बस मूवेबल में फर्क इसलिए पड़ जाता है क्योंकि इसका सपोज करो ये दिस इज अ मूवेबल पुली.
अगर इस मूवेबल पुली का भी वेट ले लेते हो तो इसका भी वेट एड अप हो जाएगा, और ये m इंटू जी, सपोज करो इसका मास m है तो m इंटू जी इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो दिस विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ लोड, ये लोड की तरह बिहेव करेगा। सो दैट्स व्हाई आप एजम्पशंस लेंगे कि पुली का भी मास 0 लेना है, मूवेबल पुली का, और स्ट्रिंग का भी मास नेग्लिजिबल लेना है, और थोड़ा फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग हैज टू बी नेग्लिजिबल, वो भी आप नेग्लिजिबल ही लेना है, 0 लेना है, ठीक है। दैट विल लर्न वन बाय वन, हम धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, लेट अस मूव ऑन नाउ। वी विल स्टार्ट विद योर सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली का, एज यू नो, एज द नेम इम्प्लाई फिक्स्ड, as the definition says, a pulley which has its axis of rotation fixed in position is called as fixed pulley. तो that means कि ये आप पुली सिस्टम लेते हैं, लोड एक साइड आपने अटैच कर दिया है, वेट लगा दिया है, इधर से एक एफर्ट लगाएंगे ताकि इसको पुल कर सको, और ये लोड ऊपर आ जाए और ये एफर्ट नीचे, एफर्ट लगाने के बाद ये स्ट्रिंग नीचे चली जाए। इसके अंदर जो तनाव होगा दैट इज इक्वल टू टेंशन, टेंशन के बराबर है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स कि हर एक ब्लॉक पे कितना नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं वो हम उसको फ्रीली अलग से बनाएं। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस लोड का, तो लोड तो इसको नीचे लेके जा रहा है और स्ट्रिंग से अटैच है, ये स्ट्रिंग में जो टेंशन है इसको ऊपर खींच रहा है, ठीक है। तो यही आपको सिस्टम को पता करना है, ठीक है, यही चीज़ आपको। तो दैट मीन्स कि इसके अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर जो तनाव है और जो फोर्स लग रहा है वही इसको ऊपर खींच रहा है, और एक स्ट्रिंग के अंदर हर एक जगह टेंशन सेम बराबर होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हमेशा सेम रहेगा, एंड इट इज अ फिक्स्ड पुली। सो दैट मीन्स कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड इन पोजीशन। दैट मीन्स कि ये इस पर्टिकुलर एक्स वाई प्लेन में ये रोटेट कर रहा था, ना ही ये ऊपर जाएगा ना ही ये नीचे जाएगा, ठीक है। सो इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड इन पोजीशन, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये एक वन पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स्ड रहेगा, ओके। सो और भी हम पुली के बारे में थोड़े थोड़े चीज़ें और भी हम पढ़ चुके थे पहले से ही। सो दैट मीन्स कि अगर इफ़ इट इज़ अ लोड, यहाँ से आप एफर्ट लगाते हो, नीचे खींचते हो, तो जितना ये नीचे एक्स डिस्टेंस आप ये नीचे जाएगा एफर्ट, उतना ही ये लोड ऊपर एक्स डिस्टेंस जाएगा। तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। और मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 होगा, क्योंकि जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ही लोड के बराबर होता है, क्योंकि इसमें जो टेंशन होगा वो टेंशन इज इक्वल टू लोड के बराबर है, और यहाँ पे भी जो टेंशन इज इक्वल टू एफर्ट के बराबर है। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का जो आप टेंशन निकालते हैं वो किस टाइप से निकालते हैं। टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, हमेशा पुल करेगा किसी सिस्टम को। देखो इस ब्लॉक को ये ऊपर पुल कर रहा है, ठीक है, और इस पुली को कैसे पुल कर रहा होगा, पुली को कुछ इस टाइप से पुल कर रहा होगा, ठीक है। ये इससे अटैच है, ये इसको नीचे खींच रहे होंगे, ये दोनों स्ट्रिंग पुली को नीचे खींच रहे होंगे, टेंशन टी और टी से। तो पुली पे जो फोर्स लग रहा है 2T लग रहा है, ठीक है। तो पुली पे आपको पता होना चाहिए फोर्स कितना लगेगा, पुली पे फोर्स 2T, ठीक है। सो मतलब दैट मीन्स कि अगर ये पुली से ऐसे राउंड में अटैच्ड है तो ये दोनों स्ट्रिंग इसको नीचे खींच रहे होंगे ना, तो हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है। तो इस ब्लॉक पे जो स्ट्रिंग का डायरेक्शन, फोर्स का टेंशन का डायरेक्शन कुछ नीचे की तरफ होगा, और इस ब्लॉक के लिए टेंशन का डायरेक्शन ऊपर होगा, क्योंकि ये टेंशन जो है, तनाव है, उसी को ब्लॉक क्या कहते हैं, जो स्ट्रिंग है इसको ऊपर खींच रहा है, ठीक है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि आप हायर क्लासेस में भी इसका यूज़ है कि दैट मीन्स कि टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, ठीक है। और इट इज़ बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग के अंदर एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, दोनों डायरेक्शन में होता है टेंशन, ठीक है। डिपेंड करता है किस बॉडी के लिए आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो इस अगर पुली के लिए मेजर कर रहे हो तो दोनों टेंशन डाउनवर्ड होंगे, ये स्ट्रिंग इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है। और फोर्स कितना लगेगा पुली पे, 2T, क्योंकि पुली फिक्स्ड है। तो इस पर्टिकुलर, क्योंकि पुली फिक्स्ड है, इसके लिए टेंशन डाउनवर्ड है, T एंड T। तो ये जो फिक्स्ड स्ट्रिंग है इस पे टेंशन कितना लगेगा, T डैश, लेट इट बी T डैश, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2T, ठीक है। तो क्योंकि पुली मूव नहीं कर रहा तो नेट फोर्स ऑन पुली 0, तो दैट मीन्स कि 2T फोर्स से डाउनवर्ड की तरफ खींच रहा था, तो अपवर्ड जो स्ट्रिंग जो इसको खींचेगा दैट इज, उसमें जो टेंशन है वो दोनों के 2T के बराबर होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई पुली इज नॉट मूविंग आल्सो, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन। वही सेम assumption जो आपको बताया था, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल,
स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है। नेगलेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड स्ट्रिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो स्ट्रिंग और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण जो लगेगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, इट मस्ट बी नेग्लिजिबल। ये नेग्लिजिबल आप लेके चलेंगे, ठीक है। सो नेग्लिजिबल लेंगे, अदरवाइज आपका अगर नहीं लोगे आप तो इस केस में जो टेंशन है वो अलग होगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर इफ यू विल टेक द फ्रिक्शन इनटू कंसीडरेशन देन द टेंशन इन द बोथ टू साइड्स वुड बी डिफरेंट, ठीक है। जो कि हमें तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। एज ऑफ नाउ आपकी क्लास तक के लिए आपको यही याद रखना है कि टेंशन नेग्लिजिबल लेना है, ठीक है। नॉट टेंशन, द मास नेग्लिजिबल होना चाहिए स्ट्रिंग का, फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड स्ट्रिंग जीरो होना चाहिए, एंड फ्रिक्शन बिटवीन द एक्सेल एंड द पुली इज ऑल्सो जीरो होना चाहिए। ये जो एक्सेल है और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन है वो भी नेग्लिजिबल मान के चलते हैं हम, ठीक है। सो let us move on now. So tension is a pulling force in the string and it always pulling in nature. ये already हम बताया मैंने, tension is bidirectional and it is always pulling in nature. It depends upon the bodies under consideration. जैसे कि अब एक और एग्जांपल दे देते हैं हम, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में तो देखो आप, सिंगल ब्लॉक सिस्टम में इसमें टेंशन कितना होगा, दिस इज अ सिंगल ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। सिंगल ब्लॉक फिक्स्ड पुली सिस्टम, इसमें जितना टेंशन है उतना ही लोड के बराबर है। सो दैट मीन्स कि जितना टेंशन है उतना ही लोड है, और जितना आप एफर्ट लगा रहे हो, नीचे खींच रहे हो, उतना ही तनाव है इसके अंदर, ठीक है। तो टेंशन इज इक्वल टू एफर्ट, ठीक है। हियर लोड इज ऑल्सो इक्वल टू टेंशन, ठीक है। सो आप लाइकवाइज आप इसका आप इजीली निकाल सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज एंड रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि टेंशन एफर्ट के बराबर है, एफर्ट और लोड भी टेंशन के बराबर है, एफर्ट टेंशन के बराबर है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड बाय एफर्ट टी बाई टी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया, अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट जो जितना नीचे एफर्ट जाएगा उतना ही लोड ऊपर जाएगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। सो जितना ही नीचे जाएगा ये उतना ऊपर आएगा। सो x या d ले लो, जो भी डिस्प्लेसमेंट है दोनों का। सो वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो 1 एंड एफिशिएंसी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो व्हिच इज इक्वल टू 1, व्हिच इज आल्सो अगर 100% है तो दैट मींस एफिशिएंसी इज 100%। ऑल्दो किसी का भी मशीन का एफिशिएंसी 100% नहीं होता, बिकॉज क्योंकि पुल्ली और आपका जो स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉस, एनर्जी में लॉस हो जाता है। सो जो आप एफर्ट लगाते हो वो ज़्यादा लगाते हो और लोड थोड़ा कम होता है, ठीक है, जितना आपको। तो दैट मीन्स कि सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, ओके। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू सिंगल मूवेबल पुली। अब भाई ये क्या करेगा भाई, पुली मूव करेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल मूवेबल पुली। अ पुली हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड इन पोजीशन इज कॉल्ड एज मूवेबल पुली, ठीक है। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, ये देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका फिक्स नहीं है यहाँ पे, तो ये ऊपर नीचे जा सकता है किसी भी एक्सिस में, ठीक है। सो इट इज जस्ट लाइक दिस, एंड इसमें थ्रेड जो स्ट्रिंग अटैच्ड होता है और ये लोड नीचे अटैच होता है। दिस इज अ फ्रेम, दिस इज अ वुडन फ्रेम, ओके। तो एफर्ट आप ऊपर डायरेक्शन में लगाएंगे तो जितना स्ट्रिंग होगा यहाँ पे एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन के बराबर है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, देखो टेंशन पुली में कितना लग रहा होगा अभी अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी मैंने बताया कि हमेशा जिस पर्टिकुलर बॉडी के लिए आप टेंशन निकाल रहे हैं इसको ऊपर खींचेगा, स्ट्रिंग तो ऊपर लेके जाएगा पुली को, तो कितने फोर्स से ऊपर खींच रहा है 2T, और ये कितने फोर्स से नीचे जा रहा है L, लोड। सो दिस लोड मस्ट बी इक्वल टू 2T, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये लाइकवाइज आप इजीली कर सकते हैं। तो जब तक ये आपको नहीं पता होगा टेंशन की डायरेक्शन, ठीक है, तब तक आप नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर बॉडी पुली के लिए ये दोनों स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो खिंचाव है, ठीक है, दैट इज दिस एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन। जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, वही टेंशन स्ट्रिंग के अंदर होगा, ठीक है। सो यू कैन इजीली राइट दिस लोड इज इक्वल टू 2T, एफर्ट इज इक्वल टू T, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज 2T बाई T, T से T कैंसिल 2,
and mechanical advantage is 2, that means कि it is a force multiplier, so the system will behave like a force multiplier, ठीक है, because its mechanical advantage is 2. What is velocity ratio? Velocity ratio देखो यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए सपोज करो ये पुली नीचे, जितना डिस्प्लेसमेंट पुली का नीचे होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट लोड का होगा. सो दैट मीन्स कि अगर सपोज करो पुली x डिस्टेंस नीचे आता है, ठीक है, तो लोड भी x डिस्टेंस नीचे चला गया होगा. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली एंड लोड इज सेम, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस. तो अगर x लोड नीचे जाता है तो एफर्ट कितना नीचे आएगा वो आपको निकालना है, ठीक है, या लोड नीचे x डिस्टेंस चला जाए या लोड x डिस्टेंस ऊपर चला जाए, तो या पुली भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या तो नीचे जाए या तो ऊपर जाए, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट वट एवर इट में भी. तो अब याद रखो जब ये कुछ ये यहाँ पे आ जाएगा पुली, तो कुछ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो गया पुली में. पहले ये पोजीशन थी तो ये वाला x डिस्टेंस और ये वाला x डिस्टेंस, सो डिस्टेंस जो x और x है ये फिक्स्ड है, तो ये डिस्टेंस 2x एक्स्ट्रा डिस्टेंस कहाँ से आएगा? इस एफर्ट को 2x डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा. तो दैट मीन्स कि स्ट्रिंग को 2x डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा ताकि ये इस वाले स्ट्रिंग में x और x डिस्टेंस और एडअप कर जाए, ठीक है, क्योंकि पुली जब नीचे जाएगा तो ये वाला जो x डिस्टेंस है वो कहाँ से आएगा? इधर से तो आ नहीं सकता बिकॉज दिस एंड इज फिक्स्ड. तो इस एफर्ट को ही 2x डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा ताकि ये डिस्टेंस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दीज टू आर्म्स, ये दोनों आर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप बुक्स में भी आपको दे रखा है बट आपको समझ में नहीं आएगा अनटिल एंड जब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. सो देखो लाइकवाइज सेम चीज़, अगर ये पुली अगर ऊपर x डिस्टेंस जाता, ठीक है, तो ये x और ये x, ठीक है, तो लोड भी x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ठीक है, तो लोड x डिस्टेंस जाएगा तो पुली भी ऊपर x जाएगा. तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग का जो x और x डिस्टेंस है ये ऊपर चला जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, एफर्ट के अंदर. तो एफर्ट मूव करेगा 2x डिस्टेंस. अगर लोड ऊपर x डिस्टेंस को, लोड अगर ऊपर खींचोगे x डिस्टेंस तो पुली भी x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ठीक है. तो और इसका जो x और x डिस्टेंस जो आपका ये जो है पुली का नया पोजीशन ये है, तो जो एक्स्ट्रा x और x डिस्टेंस है ये कहाँ जाएंगे? एफर्ट के अंदर ऊपर. तो एफर्ट 2x डिस्टेंस ऊपर चला जाता है. सो लाइकवाइज या नीचे जाए लोड या चाहे ऊपर जाए, ठीक है. तो अगर डिस्प्लेसमेंट लोड का x है तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट 2x है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए. सो वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट डबल है एज कम्पेयर टू लोड. तो x कैंसिल, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट लोड का x है तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट 2x होगा. तो वेलोसिटी रेशियो इज 2. ओके, सो मैकेनिकल एडवांटेज वुड बी efficiency of this movable pulley would be 2 divided by 2, you'll get 1. So efficiency is also 100%. okay, और यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज 2 है. सो दिस विल बिहेव लाइक अ फोर्स मल्टीप्लायर. अब देखो इसमें आप देख सकते हो एफर्ट आपको कितना लगाना पड़ रहा है. देखो इस केस पर्टिकुलर केस में सपोज करो इसमें टेंशन T है, इसमें भी टेंशन T है, ठीक है, और एफर्ट भी T लगा रहे हो और वेट यहाँ पे कितना है 5 kg का ब्लॉक है. तो कितने फोर्स से नीचे जाना चाहेगा? m/g, 5 × 10 you will get 50 न्यूटन से ये नीचे जाना चाहेगा विच इज इट्स लोड, ठीक है. और दिस लोड 50 मस्ट बी इक्वल टू 2t के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि पुली पे अपवर्ड फोर्स T+T लग रहा है 2t और डाउनवर्ड फोर्स 50 न्यूटन. तो 50 न्यूटन विल बैलेंस बाय 2t. सो टेंशन वुड बी इक्वल टू 25 न्यूटन. तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स लग रहा होगा टेंशन तनाव वो 25 न्यूटन का होगा. सो एफर्ट जो आपको लगाना पड़ रहा है वो 25 न्यूटन. तो देखो फोर्स मल्टीप्लायर हो रहा है सिर्फ आप 25 न्यूटन में ही, ठीक है, डबल वेट को लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है. सो दिस विल एक्ट लाइक अ फोर्स मल्टीप्लायर. ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट. सो
वी हैव ऑलरेडी लर्न कि पुलिस सिस्टम क्या करता है, चेंज डायरेक्शन के चेंज कर देता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देगा एफर्ट के डायरेक्शन को। एज यू कैन सी दिस इज टू पुली सिस्टम, वन इज फिक्स्ड पुली, ये फिक्स्ड पुली है, दूसरा मूवेबल पुली है, एंड स्ट्रिंग ये अटैच्ड है। ये देखो ये पूरा स्ट्रिंग में एक ही स्ट्रिंग है, तो हर एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन एक ही रहता है, एक ही तनाव रहेगा, ठीक है। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ इसका, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। देखो दिस इज मूवेबल पुली, तो इस पुली पे नंबर ऑफ फोर्स कितने लग रहे हैं, टेंशन, ये इसमें स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो ये स्ट्रिंग इसको ऊपर खींचेंगे टीटी से, और ये नीचे जाना चाहेगा लोड से, तो दिस लोड मस्ट बी इक्वल टू 2T, ठीक है, लोड मस्ट बी इक्वल टू 2T। सो देखो लोड सपोज करो ये एम ब्लॉक का एम के जी का ब्लॉक है, तो इस पे लोड कितना होगा, लोड इज इक्वल टू mg वेट के बराबर होगा, ठीक है। मास ले लो इसका 5 kg दिस ब्लॉक का, ठीक है, तो 5 × 10 यू विल गेट 50 न्यूटन, तो लोड इज 50 न्यूटन, ठीक है। और दिस मस्ट बी इक्वल टू 2T, टेंशन जो इस स्ट्रिंग के अंदर है, तो टेंशन कितना हो जाएगा भाई, लोड बाय 2 यू विल गेट 50/2 दैट इज 25 न्यूटन, ठीक है। और एफर्ट, और इस पर्टिकुलर केस में एफर्ट आप कितना लगा रहे हो, जो एफर्ट लगा रहे हो वही टेंशन के बराबर है, ठीक है। जितना खींचोगे उतना ही तनाव इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल टू टेंशन E इज इक्वल टू T, तो आपको एफर्ट जो लगाना पड़ रहा है 25 न्यूटन का, ठीक है, तो उससे आप लोड को लिफ्ट कर रहे हो। उस पर्टिकुलर पहले वाले केस में क्या था, इस पर्टिकुलर केस इसमें आपको एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है, ठीक है, तो विच इज़ ईजियर, आप आसानी से इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच सकते हो, ठीक है, आप खड़े होते भी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ खींच सकते हो। और अपवर्ड डायरेक्शन इस पहले वाले केस में मूवेबल, दैट इज द मूवेबल पुली, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना इट इज़ डिफिकल्ट, सो दैट्स वाई आप जब भी सिस्टम यूज़ करोगे तो एक और मूवेबल यूज़ कर सकते हो और एक फिक्स्ड पुली यूज़ कर सकते हो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। पहले केस में एफर्ट आप अपवर्ड लगा रहे थे, इस केस में एफर्ट डाउनवर्ड लगा रहे हो, ठीक है। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पुली सिस्टम यू कैन इजीली चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ओके। सो लाइकवाइज और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हो दिस, इसमें आपको बताना है कौन कौन से मूवेबल पुलीज हैं, कौन कौन से फिक्स्ड हैं। दिस इज योर फिक्स्ड पुली, ठीक है, दिस इज मूवेबल एंड दिस इज ऑल्सो मूवेबल, ओके। सो और एक ब्लॉक पे एक ही टेंशन होता है, सपोज करो जिसका मास है m2, ठीक है, इसका ब्लॉक का मास है m1, ठीक है। दिस पुली सिस्टम आपको याद रखना है, पुली का सबका मास 0 लेना है, ठीक है। इसका मास 0 हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो फिक्स्ड पुली है क्योंकि उसकी वजह से ना ये नीचे जाएगा, वेट अपने खुद की वेट की वजह से ना ही ये नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सल में जो इस पे जो फोर्स है दैट विल बैलेंस इट्स वेट, ओके, वेट एज वेल एज दिस टेंशन। तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सपोज करो दिस पुली इज P1, दिस पुली इज P2। तो अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। देखो P2 पुली पे अब देखना इस नीचे वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना है T1, तो इस पर्टिकुलर पुली के लिए टेंशन डाउनवर्ड होगा P2 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप हायर क्लासेस में, ठीक है, ये सारे चीज़ें करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको जब तक आपको इजीली डायरेक्शन नहीं पता चलेगा तो आप इजीली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दिस 2T इज इक्वल टू T1 के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे T टेंशन इज इक्वल टू एफर्ट के बराबर होगा। दिस बहुत सारी इक्वेशन बना ली हमने, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। सो दिस T1 इज इक्वल टू 2T के बराबर होगा, ठीक है। अब और ऊपर वाले स्ट्रिंग में देखो ये पूरा एक स्ट्रिंग है ऊपर का, तो इसमें सब पूरे एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन है। और डाउनवर्ड इस वाले पुली के लिए देखो, इस वाले पुली के लिए इसमें जो स्ट्रिंग है T1 फोर्स से ऊपर खींच रहा है इसको P2 पुली के लिए, ओके। नो दिस इज P1, ये मैं P1 के डायग्राम बना रहा हूँ। दिस ये P1 है और ये P2 है, ठीक है। तो P1 के लिए अपवर्ड है और ये टेंशन नीचे इस स्ट्रिंग में T3 है, तो इसके लिए T3 ऐसे होगा, हमेशा पुल करेगा स्ट्रिंग, हमेशा ऊपर वाला स्ट्रिंग T1 से ऊपर पुल करेगा, नीचे वाले 2T से दैट इज T2 से नीचे पुल करेगा। दिस इज T2,
और T2, ठीक है। देखो इसमें टेंशन T2 है, T2 है, ठीक है। सो T2, सो हेयर T1 इज, ठीक है। सो हेयर T1 इज इक्वल टू 2T2 के बराबर है, ओके। एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे, फ्री बॉडी डायग्राम M2 का भी देखो। M2 G4 से नीचे जाना चाह रहा है और इसको स्ट्रिंग ऊपर खींच रहा है T2 न्यूटन से। सो दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इट। अब इन दोनों में से जिस पे भी फोर्स ज्यादा होगा, जिसका भी फोर्स ज्यादा होगा, ये ब्लॉक उसी डायरेक्शन में जाएगा। सपोज करो टेंशन T2 इज ग्रेटर देन M2G, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इसका नेट फोर्स होगा T2 माइनस M2G। देखो मैं इक्वेशन फॉर्म करना आपको सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आपको बहुत आगे काम आएगा ये सब चीज़। सो T2 माइनस M2G इज अ नेट फोर्स। नेट फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जो हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी will produce acceleration within the body, so is equal to m2 into a net force, the force is equal to mass into acceleration। तो इस बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है T2 माइनस M2G, और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि T2 इज ग्रेटर देन M2G, तो नेट फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में T2 माइनस M2G, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन M2 का कितना होगा, इसको A2 ले लो। तो ये वो जो बॉडी है M2, ये A2 से एक्सेलरेट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड होगा A2 का T2 माइनस M2G डिवाइडेड बाय M2, ठीक है, नेट फोर्स बाय मास। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन, थर्ड सेकेंड एंड 1 से, और ये सारा एफर्ट भी निकाल सकते हो आप लाइकवाइज, ठीक है। और इसका भी इक्वेशन वैसे ही होगा M2 का। सपोज करो देखो इसका M1G4 से क्योंकि आप ये ऊपर जा रहा है तो इसको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा x डिस्टेंस तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस इस ब्लॉक के लिए भी टेंशन ऊपर ही होगा, खींचेगा इसको, तो हमेशा पुलिंग नेचर होता है। तो M1 इस ब्लॉक के लिए, M1 ब्लॉक के लिए M1G इज ग्रेटर देन M2, क्योंकि इट हैज टू मूव डाउनवर्ड। सो M2 नेट फोर्स कितना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू A1, ठीक है। सो लाइकवाइज ऐसे इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पुली सिस्टम एंड टेंशन एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। एक्सेलरेशन ब्लॉक का भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज। एज अ नेम एम्प्लॉय कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स कि आप अलग अलग टाइप से कैसे भी आप उसको पुलिस को क्या करो, टाई कर दो, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस, ओके। सो लेट अस मूव ऑन। सो इट कैन बी देयर इज 2 वेज, वैसे नॉट ओनली 2, मल्टीपल वेज है, बट आपके कोर्स में ये 2 वेज दे रखा है, ठीक है। और एक आपको थोड़ा सा पहले भी सिस्टम का जो नंबर ऑफ पुलिस सिस्टम अभी जो इससे पहले एग्जांपल दिया था, ठीक है, वो भी आप देखेंगे, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी आपके थोड़ा कोर्स में ये भी सिस्टम दे रखा है, 2 सिस्टम दे रखा है जिसपे आपके न्यूमेरिकल्स जनरली आते हैं, ठीक है। यूजिंग 1 फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल, एक फिक्स्ड लेना है पुली, बाकी सारे मूवेबल होंगे। और दूसरा क्या है आपका सिस्टम, यूजिंग सेवरल फिक्स्ड पुलीज इन 2 ब्लॉक्स, ठीक है। ब्लॉक्स तो ऑलरेडी आपको बताया मैंने, ब्लॉक क्या होता है, ये देखो नंबर ऑफ एक पुली, ये एक पुली वाला ब्लॉक है, दूसरा एक और ब्लॉक बनाता हूँ मैं जिसमें एक और पुली होगा, दूसरा एक और, ये 2 पुली वाला ब्लॉक है, इसमें स्ट्रिंग अटैच कर दो, ठीक है। सो ये हो गया आपका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। सो ब्लॉक्स के अंदर क्या होगा, फिक्स्ड पुलीज रहेंगे, यूजिंग सेवरल फिक्स्ड पुलीज इन 2 ब्लॉक्स, ठीक है। और ये स्ट्रिंग अटैच करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टैकल। सो इसलिए इसको कहेंगे हम, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं फिक्स्ड, यूजिंग 1 फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल। बाकी सारे पुलीज मूवेबल होंगे और एक फिक्स्ड होगा। As you can see in this particular diagram, देखो कौन सा फिक्स्ड है भाई, ये वाला फिक्स्ड है, ठीक है। एंड दीज पुलीज आर मूवेबल, पुली C, B and A, ठीक है।
ऐसे देखना आसान है, बट आपको कॉन्सेप्ट जब तक क्लैरिटी ऐसे नहीं आ जाएगी, टेंशन किस डायरेक्शन में होगा, हर एक ब्लॉक के लिए टेंशन कहाँ होगा, कैसे खींचेगा, जब तक नहीं पता करोगे तब तक आपको इसमें बहुत डिफ़िकल्टी आएगी समझने। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप टेंशन की डायरेक्शन हर एक ब्लॉक के लिए कैसे निकालें वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन देन। देखो इस पर्टिकुलर केस में ये फिक्स पॉइंट पुली है एंड अदर आर मूवेबल, ये ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें, तो उससे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। देखो ये पूरा एक स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग में जितना टेंशन होगा वही जो एफर्ट नीचे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। सो दिस एफर्ट इज इक्वल टू T3 के बराबर होगा। इस स्ट्रिंग में हमने टेंशन T3 लिया, T3 न्यूटन, ठीक है, तो वो एफर्ट के बराबर ही होगा। दिस इज योर इक्वेशन 1। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग विच आई एम शोइंग इट टू यू, इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग दिस इज ओनली वन स्ट्रिंग, ये पूरा वन स्ट्रिंग है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा T2 रहेगा, ठीक है। अनदर स्ट्रिंग इज देयर, ये रहा, देखो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन कितना है T1। तो हर एक स्ट्रिंग में टेंशन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T3 है, तो इसमें T2 न्यूटन है, इसमें तनाव कितना है T1 न्यूटन, ठीक है। सो लाइकवाइज अब मैं थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा, उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में तो टेंशन एफर्ट के बराबर है। इस ब्लॉक का देखो, इस ब्लॉक सिस्टम का मैं बनाऊँ एफर्ट ब्लॉक पुलिस सिस्टम C। तो इसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स जो इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, इसको पुलिंग होगा हमेशा T3 तो इस, और ये भी स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ये इसको खींचेंगे T2 डाउनवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी ये सिस्टम ये दैट मीन्स कि ये T2 न्यूटन से जो स्ट्रिंग है नीचे वाला T2 नीचे खींचेगा और T3 न्यूटन फोर्स से ये ऊपर जाना चाहेगा। सो नेट फोर्स दिस T2 मस्ट बी इक्वल टू 2T3, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब इस ब्लॉक का सिस्टम पुलिस सिस्टम सेकंड का बनाओ, पुलिस सिस्टम B का बनाओ। देखो T2 न्यूटन एंड T2 न्यूटन, ये दोनों इसको ऊपर खींचेंगे, ठीक है, और T1 न्यूटन डाउनवर्ड खींचेगा। सो इस स्ट्रिंग के लिए टेंशन T1 डाउनवर्ड होगा, इस पुली के लिए, इस पुली के लिए अपवर्ड होगा, इस पुली के लिए डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इस लाइकवाइज आप सीधा कर सकते हैं, देखते ही आप सीधा यहाँ पे पुट इक्वेशन बनाओ, 2T2 मस्ट बी इक्वल टू T1, ठीक है। अब इस वाले के लिए बनाते हैं हम डायग्राम, ठीक है। देखो देखते ही इक्वेशन बनाओ, T1 न्यूटन से ऊपर खींचेगा और लोड L न्यूटन इसको नीचे खींच रहा है। सो 2T1 इज इक्वल टू L के बराबर है, ठीक है। तो आप सारे इक्वेशन लाइकवाइज बना सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक है। सो दिस इज इट। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इससे आप इजीली सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। इक्वेशन तभी फॉर्म कर पाओगे जब तक कि डायरेक्शन नहीं पता होगा, ठीक है। सो लाइकवाइज आप मैकेनिकल एडवांटेज आप इजीली पता कर सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिस्टम का आप मैकेनिकल एडवांटेज आप इजीली निकाल सकते हैं इस पुलिस सिस्टम का, ओके। एंड लाइकवाइज आप खुद से आप ये सारे ड्रॉ करके देखें, ठीक है, कैसे कैसे। जब तक खुद से ड्रॉ करके नहीं देखोगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी आपको, ओके। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बताना है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये रब कर देते हैं, ठीक है। इसी पर्टिकुलर केस में सो दैट मीन्स कि अब थोड़ा इक्वेशन फॉर्म करना आपको आ गया, ठीक है। पुलिस सिस्टम में आपको पता चल गया टेंशन कहाँ कहाँ लग रहा है, कहाँ कहाँ नहीं लग रहा है, ठीक है। एंड बाकी और सभी चीज़ें पता चल गई आपको, हर एक सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम निकालना आ गया आपको, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। सो इक्वेशन इजीली हम फॉर्म कर सकते थे। देखो 2T L के बराबर है, लोड के बराबर है, तो T1 कितना होगा L/2 एंड देन अगेन 2T2 इज इक्वल टू T1। सो अगेन T2 इज इक्वल टू T1/2 और T1 की वैल्यू L/2 है, तो L/2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये L/4 हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट L/2 की होल स्क्वायर। एंड 2T3 इज इक्वल टू T2 के बराबर था, ठीक है।
T3 एंड सो T3 इज इक्वल टू T2/2 एंड T2 की वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है, विच इज इक्वल टू L/2 स्क्वायर, तो L/2 स्क्वायर इंटू 2 तो you'll get L/8, so L/2 की पावर 3, so E is equal to क्या होगा आपका T3 which is nothing but effort T3 के बराबर होता है, टेंशन जो स्ट्रिंग में ऊपर वाले में था, so you will get solving these equation you will get L/2 की पावर 3, ठीक है। so ये एक चीज़ याद रखना है आपको। एंड मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा भाई, देखो मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट, लोड कितना लगाया है L, एफर्ट कितना होता है L/2⁻3, ठीक है, तो you'll get 2⁻3। here the number of movable pulleys were 3, so that's why this number is 3, तो आप कह सकते हो this is nothing but number of movable pulley, number of movable pulleys, ठीक है, तो number of movable pulley, सपोज करो एक सिस्टम में नंबर ऑफ मूवेबल पुली n है, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा भाई 2⁻n, सो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी आप याद रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेलोसिटी रेशियो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आप नॉर्मली जो बुक में आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तो इसको आपको डायग्राम बना के थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी मच ईजियर, मैकेनिकल एडवांटेज इज़ वेरी ईजी, 2⁻3 विच इज एंड 3 इज नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। ओके, देखो होता क्या है, पहले वेलोसिटी रेशियो आपको ऑलरेडी पता था, दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है, तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लोड का कितना होगा। अब देखो जो आपको पहले मैंने बताया था, इस सिस्टम में अगर ये लोड x डिस्टेंस ऊपर जाता है, ठीक है, विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये पुली अगर x डिस्टेंस ऊपर जाता है तो लोड भी x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये पुली और लोड अटैच्ड है, तो जितना पुली नीचे जाएगा उतना ही लोड नीचे जाएगा, तो जितना पुली ऊपर जाएगा उतना ही लोड ऊपर जाएगा। एफर्ट आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है पुली ऊपर खींचेगा, ठीक है। अगर आप x डिस्टेंस, आप x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज x मीटर, ठीक है, तो पुली का भी डिस्प्लेसमेंट x मीटर है, तो जो पुली सिस्टम अब यहाँ गया होगा नी पोजीशन और दिस पुली इज दिस, ये x डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो ये जो एक्स्ट्रा जो x डिस्टेंस x और x है ये कहाँ चला जाएगा, ये इस पुली को जाएगा, तो ये पुली 2x डिस्टेंस ऊपर जाएगा ना। अगर सो दैट मीन्स कि ये पुली अगर x ऊपर जाता है तो ये ऊपर वाला पुली 2x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ठीक है। सो लाइकवाइज आप कह सकते हो इसका डिस्टेंस कितना होगा 2x, ये पुली 2x ऊपर जाएगा। अगर सो लाइकवाइज अगर ये 2x ऊपर जाएगा तो ये पुली कितना जाएगा 2x इंटू 2, क्योंकि ये x जा रहा था तो ये 2x जा रहा था, मीन्स सीधा डबल इसका, ठीक है। और ये अगर 2x ऊपर जाएगा तो ये पुली ऊपर कितना जाएगा 2x इंटू 2, ठीक है, दैट इज 4x, ठीक है, या कह सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2x। अब ये पुली ऊपर 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, तो ये पुली ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग ऊपर कितना जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2x इंटू 2, ठीक है। तो लाइकवाइज आप कह सकते हो अगर ये पुली x ऊपर जाएगा तो ये 2x, ये 2x ऊपर जाएगा, ये 2x ऊपर जाएगा तो ये 2 इंटू 2x, ठीक है। सो लाइकवाइज और ये 2 इंटू 2x ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रिंग ऊपर और ऊपर कितना और ऊपर जाएगा डिस्टेंस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2x इंटू x, ठीक है। तो आप याद रखना है कि अगर नीचे वाला पुली ऊपर x जाएगा तो x और x डिस्टेंस, ये एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है वो ऊपर वाला पुली में चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 2x। तो अगर ये 2x ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला पुली 2 इंटू 2x ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला पुली अगर 2 इंटू 2x ऊपर जाएगा तो इसका ऊपर का स्ट्रिंग भी ऊपर खींचेगा 2 इंटू 2x इंटू 2x, ठीक है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो ये स्ट्रिंग का ऊपर जितना जाएगा वही इसके अंदर नीचे आ जाएगा, तो दैट मीन्स कि ये जो एफर्ट नीचे जाएगा, स्ट्रिंग में जो एक्स्ट्रा लेंथ जो आई है वो आएगी, इस स्ट्रिंग में जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू x, ठीक है, वेयर x इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज, where 3 is the number of movable pulleys in this particular case. The displacement of effort is 2 into 3 into x.
डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज x. सो लाइकवाइज वेलोसिटी रेशियो भी निकाल लेंगे हम भाई, ठीक है. देखो तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया, 2 × 3 × x, सो x और x से x कैंसिल, 2⁻3, ठीक है. वही 2⁻3. इन जनरल अगर आप करेंगे किसी भी पुलिस सिस्टम में जिसमें n नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस हैं, तो वेलोसिटी रेशियो उसका भी 2⁻n हो जाएगा, ठीक है. एंड मैकेनिकल एडवांटेज भी 2⁻n ही था. अगर n इज़ अ नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस तो आपका एफिशिएंसी आ जाएगा 1, विच इज़ 100%. ओके, ये बहुत आसान है. पहले नंबर हर एक स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन बना लो, खुद ही असाइन करो. इसमें अगर एक स्ट्रिंग में T1 है तो दूसरे स्ट्रिंग में T2, तीसरे स्ट्रिंग में T3, ठीक है. खुद ही ले लो. जरूरी नहीं है नीचे वाले का T1 ले, T2 ले. किसी भी स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन लेना है आपको, ठीक है. ओके, सो नाउ let us move on to your next system, which is block and tackle system. So using several fixed pulleys and 2 blocks, ठीक है. हम यूज़ करते हैं like block and tackle system में, जिसमें हम 2 block system यूज़ कर रहे हैं और एक tackle यूज़ करेंगे, string भी यूज़ करेंगे हम, ठीक है. Not only that, different और भी combinations हो सकते हैं. देखो, as you can see, ओके आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ अ ब्लॉक एंड टैकल फॉर 5 पुलीज. इसमें नंबर ऑफ पुलीज कितने हैं, 1 2 and 3 4 5. दिस इज़ अ ब्लॉक एंड टैकल फॉर 4 पुलीज. ये 4 पुलीज. नंबर ऑफ पुलीज आर 1 2 3 and 4. एंड हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर. देखो ये ब्लॉक 1 है, दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 2, एंड दिस फॉर दिस सिस्टम दिस इज ब्लॉक 1 एंड दिस इज ब्लॉक 2. इस ब्लॉक में 3 the number of fixed pulleys are 3. In this particular case the number of the pulleys which is attached to this block is 2. okay, अब यहाँ से आप एफर्ट लगाते हैं. कुछ स्ट्रिंग एक ही रहता है इसके अंदर, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में आप स्ट्रिंग एक रहता है. सो दिस इज, यहाँ से एफर्ट लगाएंगे आप, ठीक है. ये देखो ये स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग है अटैच्ड है इसमें पूरे सिस्टम में, तो ये इट विल गो लाइक दिस. okay, and finally it comes over here. So that means कि अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो ये L लोड से नीचे जाना चाहेगा, ठीक है. इस ब्लॉक की बात करूं तो L लोड से ये नीचे खींच रहा है, क्योंकि आप लोड यहाँ अटैच करेंगे. L लोड से नीचे खींचेगा, और कितने नंबर ऑफ फोर्सेस ऊपर खींच रहे हैं इसको. देखो इस सिस्टम के लिए टेंशन अपवर्ड होगा, क्योंकि ये इस पुली को ऊपर खींचेगा. एंड रिमेंबर हेयर, इन दोनों पुली का मास आप 0 लेंगे. क्यों? क्योंकि अगर इसका मास नहीं लोगे तो इसका भी वेट डाउनवर्ड नीचे खींचना पड़ेगा टेंशन को, तो इसके लिए इन दोनों मास का नेग्लिजिबल लेंगे. यहाँ पे भी टेंशन T होगा क्योंकि पूरा स्ट्रिंग सेम है, ठीक है. और अगेन इस सिस्टम को ये वाला ब्लॉक भी खींच रहा है, ये भी स्ट्रिंग T टेंशन से खींच रहा है, ये भी अपवर्ड T टेंशन से खींच रहा है, और ये भी T टेंशन से खींच रहा है. तो नीचे वाले पूरे सिस्टम को कितने टेंशन खींचने हैं, T T T T एंड T. दैट मीन्स कि 5T. 5T इज होल्डिंग डाउनवर्ड लोड ऑफ L, ठीक है. तो L कितने के बराबर हो जाएगा, 5T टेंशन के बराबर हो जाएगा स्ट्रिंग. तो ऊपर में जो खींचने वाले जो टेंशन है दैट इज 5T न्यूटन से ऊपर खींचेगा. कितने लोड को, L जो डाउनवर्ड जा रहा है, L न्यूटन लोड को आपको लिफ्ट करना है. तो इन दिस पर्टिकुलर केस लोड इज इक्वल टू 5T के बराबर है, और यहाँ टेंशन एफर्ट के बराबर है. जितना एफर्ट है उतना ही टेंशन लगा रहे हैं, ठीक है. तो इजीली आप सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट मैकेनिकल एडवांटेज आल्सो, ठीक है. जैसे कि इसमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा भाई, लोड बाय एफर्ट, ठीक है. लोड कितना है 5T, एफर्ट कितना लगा रहे हो, टेंशन T. जितना एफर्ट लगाओगे उतना ही टेंशन होगा. यहाँ पे ये याद रखना है आपको. तो you'll get 5. मैकेनिकल एडवांटेज इज 5. सो दिस विल बिहेव लाइक अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है. तो आपको 1/5 एफर्ट लगाना पड़ेगा लोड को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है. सो दैट मीन्स कि अगर 10 ग्राम फोर्स है, ठीक है, तो दैट मीन्स लोड इज 10 ग्राम फोर्स. 10 ग्राम फोर्स इज नथिंग बट 10 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.8. यहाँ पे आप 10 दैट मीन्स लोड इज इक्वल टू m इंटू जी. मास इज 1 kg. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 नहीं 9.8 ले लो, तो यू विल गेट 9.8 न्यूटन.
ठीक है। सो 9.8 न्यूटन, नो मास इज 10, तो यू विल गेट 98 न्यूटन, ओके, क्योंकि ये मास 1 kg नहीं है, 10 kg। सो 98 न्यूटन से नीचे जा रहा है, तो इसका बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज इज 5, एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा आपको, एफर्ट बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज हेयर इज 5, ठीक है, तो एफर्ट लगाना पड़ेगा इसका 1/5, सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एफर्ट इज नथिंग बट लोड बाय मैकेनिकल एडवांटेज। तो लोड कितना है 98 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो 1/5 वेट लगाना पड़ेगा आपको, नहीं एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स दिस सिस्टम विल बिहेव लाइक अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, जहाँ पे आपको फोर्स 1/5 लगाना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू योर लोड इन ऑर्डर टू लिफ्ट दैट पर्टिकुलर लोड। सेम इज केस फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम हेयर, दिस इज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 4 पुलीज का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। तो यहाँ देखो, यहाँ लोड लगाया आपने, लोड डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ फोर्सेस इसको खींच रहे हैं, देखो टी टेंशन से ऊपर खींचेगा लोड को, ये भी टी को, और ये भी टी से ऊपर खींचेगा, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है, तो सारे जो स्ट्रिंग इसको खींचेंगे अपवर्ड, दैट इज टी टी, अगेन यहाँ पे भी टी है, ये भी टी खींचेगा और ये भी टी खींचेगा, तो 1 2 3 4, तो 4T विल लिफ्ट अप अ लोड ऑफ L, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, आपको इजीली आप कर पाओगे अदरवाइज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऊपर खींच रहे हैं इसको, ठीक है। आप यहाँ पे फिक्स्ड पुली का कोई उतना यूज़ नहीं है, क्यों, क्योंकि जो फिक्स्ड पुली का अगर इसका वेट भी होता है तो इट विल बी बैलेंस्ड बाय दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक्स इसको नीचे खींचेगा, ठीक है, ब्लॉक इसको ऊपर होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नीचे वाले जो ब्लॉक सिस्टम है वहाँ पे जो नंबर पुलिस का वेट आप 0 लेना है। अगर आप नहीं लोगे, ठीक है, तो इस ब्लॉक और पुली का भी कुछ वेट इसको नीचे लेके जाएगा, दिस वेट विल बी एडेड टू द लोड, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप कहोगे इस पे नंबर ऑफ फोर्स कितने लग रहे हैं, 40 विल बैलेंस लोड प्लस वेट ऑफ दिस सिस्टम। जो नीचे का जो वेट है इसका पूरा वेट ले लो, W न्यूटन, मतलब मास होगा तो m/g करेंगे, दैट इज इक्वल टू W, ठीक है। तो लोड प्लस वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक उसको लिफ्ट करेगा कितना फोर्स, 40, तो आपका इक्वेशन इन डिफरेंट चेंज हो जाएगा। सो मैकेनिकल एडवांटेज भी इजीली निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। सो आप इसका हम मैकेनिकल एडवांटेज ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसका हम वेलोसिटी रेशियो भी निकाल लेते हैं। देखो मैकेनिकल एडवांटेज कितना था, L = 5T, सो मैकेनिकल एडवांटेज 5 आ गया था, ठीक है। इन जनरल इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ द पुलीज यूज्ड इन द बोथ द ब्लॉक, अगर n इज द नंबर ऑफ पुलीज है, ठीक है, तो L = लोड = NT के बराबर होता है, ठीक है, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ पुलीज यूज्ड इन द ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो नंबर ऑफ पुलीज हमने कितना यूज किया था पहले वाले डायग्राम में, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में 5, तो n = 5 कर सकते हैं। तो लोड = NT, टेंशन = T, लोड = N के बराबर है, मैकेनिकल एडवांटेज = N विच एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। तो एफर्ट = लोड बाय N, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि देखो वेलोसिटी रेशियो इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। सो अगर लोड x डिस्टेंस ऊपर खींचता है, ठीक है, तो एफर्ट nx डिस्टेंस ऊपर खींचेगा, ठीक है। सो ये चीज़ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर देखो लोड जितना ऊपर x डिस्टेंस खींचेगा, ऊपर x डिस्टेंस ऊपर खींचा है जितना लोड, ठीक है, उतना ही x डिस्टेंस ये वाला सिस्टम है, ये ब्लॉक अटैच्ड है, ये भी ऊपर जाएगा x डिस्टेंस। ये x डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो ये कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स और ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि नया पोजीशन इसका ब्लॉक का कहीं ऊपर होगा, ठीक है। तो जो x ये वाला डिस्टेंस इस स्ट्रिंग में x प्लस इसमें स्ट्रिंग में x प्लस x, तो ये 5x डिस्टेंस है, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस, और ये अगर नीचे वाला सिस्टम ऊपर चला गया, ये जो एक्स्ट्रा 5x डिस्टेंस कहाँ जाएगा, वो एफर्ट ही खींचेगा इसको नीचे, 5x डिस्टेंस यहाँ से खींचना पड़ेगा आपको। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज x,
तो डिस्प्लेसमेंट एफर्ट वुड बी 5x, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लाइकवाइज इजीली आप वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आप बुक्स में आप बुक के थ्रू आप नहीं पता कर सकते हो। आपको इसके लिए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में डायग्राम देख के थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। लाइकवाइज इसमें भी देखो, इसमें भी थोड़ा आसान है। देखो ये अगर लोड x ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक भी ऊपर x आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है इससे, तो ये भी ऊपर x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। ये x ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक कहीं कहीं और ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग थोड़ा सा घट जाएगा, x डिस्टेंस यहाँ x इसका, x इसका, x इसका, तो 4x। तो जो 4x डिस्टेंस ये स्ट्रिंग ब्लॉक ऊपर आ गया है, ये जो 4x एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है ये किस में जाएगा, ये कौन खींचेगा इसको? तो ये एफर्ट की एंड से आप जब खींचोगे नीचे, ठीक है, तो एफर्ट को 4x डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा, तभी ये x डिस्टेंस लोड ऊपर आएगा, ठीक है। सो वेयर n इज नथिंग बट नंबर ऑफ फिक्स्ड पुलीज, यहाँ पे 4 इज नथिंग बट नंबर ऑफ पुलीज इन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। हेयर n इज 5, 1 2 3 4 5। सो लाइकवाइज आप मैकेनिकल एडवांटेज भी मैकेनिकल एडवांटेज एज वेल एज वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हो। यू विल गेट nx by x, x कैंसिल n, तो एफिशिएंसी अगेन 1 होगा इसका 100%, ओके। सो लाइकवाइज दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अब हम थोड़ा बहुत और न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा देख लेते हैं इसके, ओके। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और, जो हम ऑलरेडी आपको सिस्टम बताया था कि सपोज करो इफ़ द लोअर ब्लॉक हैज़ वेट Lw, ठीक है, अगर वेट W है तो NT जो N इज नंबर ऑफ पुली सिस्टम, ठीक है, नंबर ऑफ, तो NT जितना N नंबर ऑफ थ्रेड्स थे, ठीक है, जो इसको ऊपर खींच रहे थे, टी NT ऊपर खींच रहे थे, और नीचे लोड है और इसका सिस्टम का जो वेट था वो भी इसमें एडअप हो जाएगा। तो NT मस्ट बी इक्वल टू L प्लस W, ठीक है, वेट नीचे वाले ब्लॉक सिस्टम का जो इसको नीचे लेके जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ये इक्वल हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज वही होगा, लोड बाय एफर्ट। एफर्ट कितना लगा रहे हो आप? T, क्योंकि एफर्ट तो टेंशन के बराबर ही होगा, ठीक है। सो यू विल गेट दिस, T से T कैंसिल, सो W बाई T आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो इज n, एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एडवांटेज जो है वेलोसिटी रेशियो, इस पे डिवाइडेड बाय n करेंगे पूरे सिस्टम को, एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। तो n से n कैंसिल, यू विल गेट W बाई NT, ठीक है। सो इजीली आप मैकेनिकल एडवांटेज भी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो। एंड द ग्रेटर, और एफिशिएंसी को ग्रेटर करने के लिए वेट को कम करना पड़ेगा आपको। ग्रेटर द एफिशिएंसी द वेट m शुड बी स्मॉलर होना चाहिए, ओके। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। एज यू कैन सी इन द एडजेसेंट डायग्राम shown in the figure, fixed pulley used by a boy to lift a load of 400 Newton through a vertical height of 5 meter in 10 सेकेंड। ये लोड को वर्टिकल हाइट 5 मीटर पे ले जाना है, या एफर्ट आप लगा रहे हो 480 न्यूटन। देखो देखिए, आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, आप 10 सेकंड में आप इसको खींचेंगे, ठीक है, तो ये 5 मीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप इधर इस एंड से आप एफर्ट लगाएंगे 480 न्यूटन, ठीक है, और ये 5 मीटर ऊपर आ जाता है 10 सेकंड में, ठीक है। तो 5 मीटर ये लोड ऊपर चला जाता है। आप कितना अप्लाई कर रहे हो? योर एफर्ट वुड बी 480 न्यूटन। सो आपको पूछा क्या है, ठीक है, देखो, द बॉय एफर्ट अप्लाइड बाय द बॉय on the other end of the rope is 480 Newton. What is the velocity ratio of the pulley? देखो velocity ratio पूछा है। velocity ratio देखो, जितना ये x डिस्टेंस नीचे डाउनवर्ड जाएगा उतना ये x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ठीक है। so velocity ratio would be equal to x by x, you will get 1. what is the mechanical advantage? देखो mechanical advantage कितना हो गया भाई? mechanical advantage load by effort, नहीं, load is 400 divided by effort is 480 Newton, ठीक है। so you will get around okay, just a minute, it should be equal to 400 divided by 480, you will get mechanical advantage of 8.83. so you will get mechanical advantage of 0.83. so this would be your mechanical advantage.
कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द पुली। एफिशिएंसी कितना होगा भाई, वेलोसिटी रेशियो डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय 1। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा एफिशिएंसी दैट इज 0.83 डिवाइडेड बाय 1, यू विल गेट 0.83। और परसेंटेज में पूछा एफिशिएंसी तो इट वुड बी 83%। ठीक है, सो नाउ डी ऑप्शन इज व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द पुली, why it is not 100%, why it is not 100%, because कि आप लगाते रहे हो एफर्ट 480 न्यूटन का, एफर्ट इज 480 न्यूटन बट लोड है 400 न्यूटन का, दोनों इक्वल होने चाहिए ना, एफर्ट टेंशन और ये सारे इक्वल होने चाहिए। सो दैट मीन्स कि व्हाई इट इज नॉट इक्वल, बिकॉज सम एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन भी होगा। ठीक है, friction is also there, so there is some loss of energy in friction. Friction is also doing some work, so that's why the efficiency of this system is not 100%। ये हम already पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, so आपका सिस्टम का efficiency है 83%, so which is nothing but mechanical advantage by velocity ratio। okay, so now let us move on। what is the energy gained by the load in 10 second? ये लोड ने कितना एनर्जी गेन किया है, ऑब्वियस ही बात है, ये 5 मीटर हाइट पे चला गया है तो इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है, तो कितना होगा m इंटू जी इंटू एच, मास इज m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, दिस इज इक्वल टू 400 न्यूटन, क्योंकि लोड इज इक्वल टू m इंटू जी के बराबर होता है, तो 400 इंटू 5, तो यू विल गेट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। m इंटू जी किसके बराबर है, 400 मल्टीप्लाइड बाय 5, यू विल गेट 5 4 द 20, so that means you will get 2000 joule of potential energy. The energy stored in the load side it would be 2000 joule. And how much power has delivered by the boy in raising the load? पावर क्या होता है भाई, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन आपने कितना किया है, एफर्ट आपने कितना लगाया है 480 न्यूटन का। ठीक है, आपने एफर्ट कितना लगाया था, हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड बाय बॉय, आपने एफर्ट लगाया है 480 का। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने किया है 5 का। ठीक है, तो 480 इंटू, सो वर्क डन बाय यू इज 480 इंटू 5 डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम लगा इसको लिफ्ट करने में, कितना लगा था 10, यू विल गेट 48 इंटू 5, यू विल गेट 240, दैट मीन्स द पावर वुड बी 240 watt। okay, so work done per unit time is called as power। okay, now और क्या पूछा है देखो, how much power, okay, that is equivalent, that has been done, the boy has to apply an effort which is greater than the load he is lifting। what is the justification for using the pulley? that means कि इसमें because of friction there is some loss of energies, so that's why the effort in the so that's why effort is more as compared to load, so this would be the answer। okay, so आप ये जो आप निकाला है आपने पावर, ठीक है, वो आपने निकाला है बॉय के साइड में। ठीक है, आप पावर निकाल सकते हो, पावर डिलीवर्ड एट लोड साइड वुड बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि m इंटू जी हेयर एट लोड साइड वुड बी इक्वल टू 400 इंटू, ठीक है, हाइट कितना जाना है 5, so divided by 10, you will get 5 for the 20 into 2, so that means 200 watt। at load side the power delivered would be 200 watt। ठीक है, but at effort side the power delivered would be 240 watt। ठीक है, so likewise आप different numericals easily कर सकते हैं। ठीक है, but concept आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको करना, और जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान है आपके लिए, हो जाएगा, आसान होता चला जाएगा आपके लिए। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू वन मोर एग्जांपल। देखो, block and tackle system has 2 pulleys in each block with the tackle tied to the block to the hook of the lower block and the effort being applied upward। ठीक है, effort upward लगा रहे हैं आप। draw a neat diagram to show this arrangement and calculate the mechanical advantage। ठीक है, देखो नंबर ऑफ सिस्टम क्या है,
एंड कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑल्सो। कुछ इस टाइप से आप बना सकते हैं सिस्टम को, जिसमें 1 2 3 4 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये डायग्राम ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर ऑफ द पुलिस सिस्टम इज 4, ठीक है, 2 ब्लॉक सिस्टम है एंड नंबर ऑफ पुलिस इज 4। द अरेंजमेंट इज ऑलरेडी शोन एंड हियर द लोड इज बीइंग सपोर्टेड। देखो लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में L है, ठीक है, वो कितने सपोर्टेड है, और आप एफर्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एफर्ट अपवर्ड लगा रहे हैं, तो लोड कितना लग रहा है, टेंशन कितना अपवर्ड डायरेक्शन में इसको खींच रहा है। सो एक ये वाला टेंशन, एक ये वाला टेंशन, एक ये वाला और ये वाला, तो टी 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 ये सारे टी जो स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। सो यू विल गेट 1 2 3 4 5, तो दिस 5T इज इक्वल टू लोड के बराबर होगा, ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे हो गया लोड इज इक्वल टू 5T एंड एफर्ट इज इक्वल टू T, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज 5T/T, T से T कैंसिल, यू विल गेट 5। ओके, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज 5। इफ द लोड मूव्स अप द डिस्टेंस ऑफ x, अगर लोड x डिस्टेंस ऊपर जाता है, ठीक है, तो पुली भी x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ठीक है, वही सेम चीज बनाया मैंने। व्हाट डिस्टेंस विद द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव अप, तो ये डिस्टेंस फ्री एंड वाला कितना मूव जाएगा। देखो ये पूरा सिस्टम ही x डिस्टेंस ऊपर जाएगा क्योंकि इट इज अटैच्ड थ्रू लोड, तो x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ये पूरा x डिस्टेंस जाएगा, तो स्ट्रिंग का जो एक्स्ट्रा x x x x x 5x, ठीक है, तो 5x डिस्टेंस स्ट्रिंग में एक्स्ट्रा जो आया है वो एफर्ट से खींचना पड़ेगा आपको ऊपर, ठीक है। सो तो ये जो डिस्टेंस एफर्ट मूव करेगा वो 5x मूव करेगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी अभी हम पहले भी एग्जांपल दे चुके हैं, इसलिए आप इजीली समझ पाओगे। If the load moves a distance of x, the free end of the string will move a distance of 5x. Here note the effort is applied upward, so its mechanical advantage and the velocity ratio is more than that of the total number of pulleys used, ठीक है। देखो क्योंकि एफर्ट आप अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज here the effort is applied in upward, so its mechanical advantage and velocity ratio is more than that of the total number of the pulleys. Why? वो इसलिए क्योंकि आप एफर्ट आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, ठीक है, तो एफर्ट जो लगाएंगे आप अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका कुछ वेट इस नहीं, तो जो मैकेनिकल एडवांटेजेस वगैरह होता है विच इज़ नथिंग बट 5, ठीक है, और आपका जो वेलोसिटी रेशियो इसका कितना आ जाएगा, क्लोज टू, अगर वेलोसिटी रेशियो की बात करें, सो अगर ये मूव करता है एफर्ट 5x डिस्टेंस, तो ये लोड कितना होता है x nx, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। सो दिस इज जो 5 आ रहा है, ठीक है। सो द एफर्ट एंड अप्लाइड, सो इन द इट्स मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द पुलीज यूज्ड। ओके, वो ऐसे भी ज़्यादा होगा क्योंकि आप जो एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको खींचने में, ठीक है, सो इसका कुछ आप एक्चुअल में इसका कुछ थोड़ा सा लोड भी आ जाएगा, उसको आपको खींचने में भी थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई आप ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में, ठीक है, जो वेलोसिटी रेशियो है, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज 5 और ये 5 है, ठीक है, वो कब होता है, वो आइडियल कंडीशन में होगा जहाँ पे आपका लोड और जो नीचे वाले का जो लोड है वो नेग्लिजिबल लेंगे आप, और स्ट्रिंग में जो आप टेंशन लेंगे वो नेग्लिजिबल लेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो डायग्राम alongside shows an arrangement of the 3 pulley system ABC, ठीक है, the load is marked as L and effort is as E, ठीक है। नेम द पुली ABC, कौन कौन से पुलिस के नेम आपको देने हैं, ठीक है। देखो ABC पुली, A इज मूवेबल, B इज मूवेबल, C इज फिक्स्ड, इजीली हम कह सकते हैं, ठीक है, मूवेबल एंड फिक्स्ड। ओके, मार्क द डायग्राम एज एफर्ट, लोड एंड टेंशन T1 T2 इन द 2 स्ट्रिंग्स। देखो डायग्राम कैसे कैसे बनाएंगे आप, देखिए टेंशन एंड लोड का डायग्राम उसमें बनाना है। सपोज करो इसमें टेंशन T1 है, तो ये टेंशन T1 आप डाउनवर्ड लगाएंगे, एफर्ट E ऐसे लगाएंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन इसको T1, इस पुली के लिए T1 ऊपर डाउनवर्ड, इस टेंशन के लिए T1 अपवर्ड,
इसके लिए टेंशन T1 अपवर्ड, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है तो इसको लेंगे इस स्ट्रिंग के लिए T2 डाउनवर्ड, इस पुली के लिए टेंशन T2 अपवर्ड, इस पुली के लिए टेंशन T2 अपवर्ड, एंड लोड इसको नीचे लेके जाएगा। ठीक है, सो लाइकवाइज आप इजीली रीड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एंड हाउ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ L एंड E रिलेटेड टू द टेंशन T1। देखो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू E के बराबर है, और यहाँ पे 2T1 इज इक्वल टू T2 के बराबर है, और 2T1 इज इक्वल टू T2 के बराबर है, और 2T2 लोड के बराबर है। ठीक है, सो 2T2 लोड के बराबर है तो T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम, तो यू विल गेट 2 सो द 4T1, सो लोड इज इक्वल टू 4T1। ठीक है, और T1 इज नथिंग बट एफर्ट, तो यू विल गेट मैकेनिकल एडवांटेज एज लोड बाय एफर्ट। लोड इज 4T1 डिवाइडेड बाय एफर्ट इज T1, so you will get 4. The mechanical advantage is how much is the magnitude of load and effort related. So you can easily say, तो यहाँ पे T1 is nothing but effort, तो so load is 4 times of effort. ये भी कर सकते हैं सीधे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, 4 and then calculate the mechanical advantage and velocity ratio. Mechanical advantage again इसका 4 ही हो जाएगा जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वेलोसिटी रेशियो आप देख लो। ठीक है, आपका वेलोसिटी रेशियो भी इस जितना इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो इसमें आप ऑलरेडी देखिए कि ये ऊपर जाएगा तो अगर x जाएगा तो ये स्ट्रिंग 2x ऊपर जाएगा, ये 2x जाएगा तो ये 2 × 2x। ठीक है, तो यू विल गेट 4x। ठीक है, तो 4x ये ऊपर जाएगा तो 4x डिवाइडेड बाय x करेंगे तो यू विल गेट अगेन 4। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज एंड ये वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो 4। ओके, व्हाट अजम्पशन हैव यू मेड इन दिस पार्ट? पुली एंड बी आर वेटलेस। ए एंड बी का वेट हम 0 लेंगे क्योंकि और सी का वेट हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल, दीज आर द न्यूमेरिकल्स दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, एंड मेक श्योर टू नो द डायरेक्शन ऑफ टेंशन विद इन द स्ट्रिंग। Okay, with this your machine chapter is over. I hope कि आप सारे कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। जितने भी आपको मशीन सिस्टम्स के बारे में बताया है, डिफरेंट मशीन सिस्टम्स के बारे में बताया है, उसको आप गो थ्रू करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, एंड कोई भी डाउट होता है यू मेक श्योर कि यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, ओके, विद दिस विल एंड अप टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।